In 11th class education, we are discussing aims of education, and so far we have discussed individual aim of education and social aim of education. And my dear students, today we are going to discuss moral and spiritual aim of education. First, let's see what is moral aim of education. Actually, these two have been kept together. Actually, morality and spirituality, they always come together. Wherever there is morality, there are chances of spirituality. These are connected with each other. That's why the two have been kept together. Now, let's first try to understand what is morality. My dear students, actually in Greece there were 7 families, and those 7 families had set their standard of living. They had set certain norms of living. They had set certain rules of living. My dear students, मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि ग्रीस में 7 फैमिलीज थी और उन फैमिलीज ने ज़िंदगी गुजारने का एक क्राइटेरिया तय किया हुआ था। कुछ नॉर्म्स रखे थे, कुछ रूल्स रखे थे, कुछ स्टैंडर्ड्स रखे थे, जिन रूल्स के तहत, जिन स्टैंडर्ड्स के तहत, जिन वैल्यूज़ के तहत वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। यानी एक तरह का वो कोड ऑफ कंडक्ट सेट किया हुआ था उन 7 फैमिलीज़ ने। ग्रीस की जो 7 फैमिलीज थी, 7 families, they had set a code of conduct और रूल्स रखे थे, कुछ we can say स्टैंडर्ड्स रखे थे ऑफ लिविंग लाइफ। उन स्टैंडर्ड्स को, उन कोड्स को, उन रूल्स को, उन स्टैंडर्ड्स को उन्होंने नाम दिया था मोरल्स। My dear students, there were 7 families in Greece. They had set standards of living their life. They had set certain rules of living life. They had framed a code of conduct, and those rules, those standards, that code of conduct was called morals. Means, what is morals? Morals is a number of rules. It is a set of rules. It is a set of standards. It is the set of code of conduct, and it is the base on which they used to live their life. And these morals slowly got modified and became morals. Thus, what are morals? Morals are the standards of life. Morals are the rules of life. Morals are the code of conduct of life. Morals are those which teach us what's right, what's wrong, what's good, what is bad. Morals help us to differentiate between right and wrong. Morals show us the path of living in a society. They show us the way of living in the society. So when through our education, we try to inculcate the values, the morals, the rules, the standards of living in a society, that's called the moral aim of education. Means, moral aim of education is when the aim of education is to teach rules, standards, or code of conduct of living in the society. Moral aim of education, when the aim of education is to teach rules,
standards or code of conduct of living in the society, the aim is called moral aim of education. Moral aim of education. So simply, जब एजुकेशन का मकसद होगा स्टूडेंट्स को, बच्चों को ये सिखाना कि सोसाइटी में कैसे रहना है, सोसाइटी के रूल्स क्या हैं, सोसाइटी की रेगुलेशंस क्या हैं, सोसाइटी के वैल्यूज क्या हैं, यानी व्हाट इज द बेस ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी, क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, बच्चे को ये सिखाना डूज एंड डोंट्स। जिस तरह आज कोविड चल रहा है तो हमें सिखाए जाते हैं डूज एंड डोंट्स, हैंड वॉश करो, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करो, दोज आर द डूज। डोंट्स, भीड़ में मत जाओ, किसी के साथ हैंडशेक मत करो, किसी के साथ गले मत मिलो, दोज आर डोंट्स। तो यही मॉरलिटी भी यही सिखाती है, क्या कुछ करना है सोसाइटी में और क्या नहीं करना है। जो करना है दैट्स गुड, जो नहीं करना है दैट इज बैड। इसी तरह व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, जब ये डिफरेंशिएशन, जब ये तमीज़ बच्चे को सिखाया जाएगा, उस एजुकेशन को हम कहेंगे मॉरल एजुकेशन। और जब ये हमारा मकसद होगा ऐसी तालीम बच्चों को देना, दैट इज कॉल्ड द मॉरल एम ऑफ एजुकेशन। इसी तरह व्हाट इज द स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन। नाउ लेट्स कम टू द स्पिरिचुअल एम। My dear students, as a religious being, जब हम मजहब के लेवल पे बात करेंगे, नेचुरलिज्म को छोड़ के, नेचुरलिस्ट से वट एवर यू आर लाइक दैट, आपके अंदर कुछ नहीं है, आपके बियॉन्ड कुछ नहीं है, वट एवर वी कैन सी, वट एवर वी कैन टच, वही रियलिटी है। मीन्स दे डोंट बिलीव इन आइडियाज। लेकिन जब हम आइडियलिज्म की बात करेंगे, जब हम मजहब के लिहाज से बात करेंगे, तो जो एक ह्यूमन बीइंग है, जो एक इंसान है, ही इज नॉट जस्ट अ फिजिकल बॉडी। यानी इंसान सिर्फ सेल्स का बना हुआ नहीं है, टिश्यूज का बना हुआ नहीं है, ऑर्गन्स का बना हुआ नहीं है। यस, जब हम सेल्स की बात करेंगे, जब हम टिश्यूज की बात करेंगे, जब हम ऑर्गेनेलीज की बात करेंगे, जब हम ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे, दैट मेक्स आवर फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी। लेकिन इंसान जो है, इंसान फिजिकल बॉडी के साथ साथ कलेक्शन ऑफ सेल्स, कलेक्शन ऑफ टिश्यूज, कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के साथ साथ इंसान जो है ये एक स्पिरिचुअल बीइंग भी है। यानी इंसान की जो बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी के साथ साथ एक स्पिरिचुअल बीइंग भी है, इसमें एक स्पिरिट है। कैसे? How we can say that man has a spirit? जब अगर सपोज मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा, दो कुत्ते हैं, दोनों भूखे हैं, आपने यहाँ से एक रोटी डाली उनको, तो कुत्ते रोटी पे झपटने के बजाय पहले एक दूसरे पे झपटते हैं, एक दूसरे का मुंह काटते हैं। मीन्स जो कुत्ता है, दैट इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ सेल्स, दैट इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ टिश्यूज। उसमें वो एक स्पिरिट नहीं है, एक सोल नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स में यही जज्बा, पहले आप भी भूखे हो, दूसरा भी भूखा है, रोटी आपके सामने है, आप खुद नहीं खाते हो, आप दूसरे को खिलाते हो, आपके सामने पैसा पड़ा हुआ है, आप वो पैसा उठाते हैं और उसके मालिक को ढूंढते हैं, ये किसका है? अरे भाई, आपको मिला। कौन सा चीज है आप में? ये कौन सा जज्बा है जो आपको ये कंपेल करता है? नहीं, ये किसी की अमानत है, आई हैव टू रिटर्न इट बैक। अरे आपकी फिजिकल बॉडी ये नहीं कहेगी, अरे यार आपको माल मिल गया, पैसा मिल गया, खींचो रखो जेब में। नहीं, आपके अंदर कोई चीज है जो आपको मजबूर करता है
कि नहीं, ये जो मैंने कोई अमानत यहाँ से उठा ली, ये किसी और की अमानत है, मुझे किसी और के इसके मालिक तक पहुँचना है, उसको वापस करना है। ये कौन सा चीज़ आपको कंपल करता है? दैट इज स्पिरिट, दैट इज सोल। यानी पता चला कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में फिजिकल बॉडी के साथ साथ एक स्पिरिचुअल बॉडी है, एक स्पिरिट है, एक सोल है। और जब एजुकेशन का मकसद होगा टू डेवलप सोल ऑफ एन इंडिविजुअल, जब एजुकेशन का मकसद होगा टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ एन इंडिविजुअल, जब एजुकेशन का मकसद होगा टू डेवलप ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन वर्च्यूज, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, जस्टिस, डिसिप्लिन, जब ये मकसद होगा एक इंडिविजुअल में पैदा करने का, जब एजुकेशन का ये मकसद होगा, उस मकसद को हम कहेंगे spiritual aim of education. Means when the aim of education is to develop the spirit or soul of an individual by developing various human qualities like honesty, dedication, justice, discipline, fellow feeling, sympathy, empathy, those qualities, development of those qualities is called the spiritual aim of education. अब इसके क्या फ़ायदे हैं? When we will develop the moral and spiritual morality and spirituality of our individuals, morality and spirituality of our students, तो उसके क्या फ़ायदे मिलेंगे, यानी इम्पोर्टेंस क्या है? What is the importance of moral and spiritual aim? तो इसकी इम्पोर्टेंस, पहली जो इम्पोर्टेंस है, it develops कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स। जब हम बच्चे में मॉरलिटी डेवलप करेंगे, उसको रूल्स के हिसाब से, रूल्स के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग उसको लाइफ गुजारने की तरबियत देंगे, जब उसका स्पिरिट डेवलप करेंगे, जब उसका सोल डेवलप करेंगे, तो उससे क्या होगा? बच्चे का एक अच्छा सा कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। और कैरेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है? व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो एजुकेशन का मकसद होना चाहिए, एजुकेशन का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए, आई थिंक, कैरेक्टर बिल्डिंग। और ये इस वक्त की ज़रूरत है। व्हेन there is crisis of values, when there is immorality, when there are wars, when there are crimes, when there is corruption, when there is injustice, तो इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत जो है, that is development of character। और ये कैरेक्टर कैसे डेवलप हो जाएगा? when the aim of education is moral and spiritual development. Number 2, it develops various human qualities like fellow feeling, sympathy, empathy, discipline, honesty, etc. इंसान को इंसान बनने के लिए जिन क्वालिटीज़ की ज़रूरत है, तब हम इंसान और बाकी वाइल्ड एनिमल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। व्हेन वी डेवलप ह्यूमन क्वालिटीज़ लाइक फेलो फीलिंग, यही रोटी की जो एग्जांपल मैंने दी, हम में अगर फेलो फीलिंग नहीं होगी, हम में अगर सिंपैथी और एम्पैथी नहीं होगी, हम में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, हम में अगर ऑनेस्टी नहीं होगी, तो हम ह्यूमन कहलाने के लायक नहीं है। मीन्स अगर हमारी मॉरलिटी सही होगी, अगर हम स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड होंगे, तो हम में ये क्वालिटीज़ आएंगी, हम में फेलो फीलिंग आएगी, हम में सिंपैथी, एम्पैथी, बहुत सारी जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं ये आ जाएंगी। Number 3, it will resolve the
क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड। इस वक्त की जो दुनिया है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कोविड-19। कोविड-19 पे पॉलिटिक्स हो रही है। वन कंट्री इज ब्लेमिंग अदर कंट्री, वन पर्सन इज ब्लेमिंग अदर पर्सन, वन नेशन इज ब्लेमिंग अदर नेशन फॉर स्प्रेडिंग ऑफ दिस डेडली डिजीज। सी द लेवल ऑफ आवर morality. One country is attacking other country, one state is attacking other state. This is that we are living in a materialistic world, जहाँ हर एक ये चाहता है कि मैं सारा कुछ हड़प करूं। एक मुल्क दूसरे मुल्क के रिसोर्सेज पे कब्जा करना चाहता है, एक मुल्क दूसरे मुल्क के लोगों पे कब्जा करना चाहता है, उनको अपना गुलाम बनाना चाहता है। व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट मटीरियलिज्म। हम पे मटीरियलिज्म इतना हावी हो चुका है कि हमें इंसानियत, मतलब जो इंसानी क्वालिटीज़ हैं वो हमें ख़त्म हुई है। इसी का नतीजा है देयर इज़ करप्शन, देयर इज़ इनजस्टिस, देयर आर वॉर्स, देयर आर क्राइम्स, देयर इज़ मर्डर। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और वर्ल्ड पीस, दुनिया में अमन लाने के लिए, दुनिया में हार्मनी पैदा करने के लिए, दुनिया में हम आहंगी पैदा करने के लिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड पैदा करने के लिए मॉरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज इट विल रिजॉल्व क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया की क्राइसिस है इस वक्त, वो ख़त्म हो जाएगी। जब ये सारा कुछ हो जाएगा, देयर विल बी यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो ये सारा जब आएगा तो दुनिया में अमन जब आएगा तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड आएगा। अब कुछ स्पिरिचुअल एम की थोड़ी बहुत इसका क्रिटिसिज्म भी है। अगर हम होली एंड सोली एजुकेशन का मकसद रखेंगे स्पिरिचुअल एम, यानी फिजिकल बॉडी को छोड़ेंगे, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे जोर देंगे, मॉरलिटी तो ठीक है, देयर इज नो क्रिटिसिज्म, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में वी कांट इग्नोर द फिजिकल वर्ल्ड। हमें इस्लाम भी कहता है, या जो दूसरे मजहब भी हैं, कि दीन के साथ साथ मजहब के साथ साथ, हम इस्लाम के लिहाज से कहेंगे कि दीन के साथ साथ, या बाकी मजहबों में कहेंगे बाकी मजहब के साथ साथ हमें दुनिया को भी चलाना है। अगर हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे जोर देंगे तो क्रिटिसिज्म ये है, वी विल get detached from physical world। अगर सिर्फ फोकस होगा स्पिरिचुअलिटी पे तो क्या नतीजा निकलेगा? we will get detached from physical world। हम फिजिकल दुनिया से, हम इस जो दुनिया है, इस दुनिया से, मटीरियलिस्टिक दुनिया जो है, इस दुनिया से हम कंप्लीटली डिटेच हो जाएंगे। वो भी नहीं करना है। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सोशल एम एंड स्पिरिचुअल एम। नंबर 2, we may feel this world as source of all troubles। जो महात्मा बुद्ध के साथ हुआ कि जब तक वो घर के अंदर था, उसको पता ही नहीं था कि मरना भी है, गुर्बत भी है दुनिया में माजूर लोग भी है। वो अपनी दुनिया में रहता था, लेकिन जब वो बाहर आया, जब उसने किसी को मरते हुए देखा, किसी को लंगड़ा देखा, किसी को गरीब देखा, तो उसको लगा अरे यार ये दुनिया तो कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग, दिस फिजिकल वर्ल्ड इज नथिंग। ही कंसिडर्ड दैट दिस वर्ल्ड इज सोर्स ऑफ ट्रबल्स। ये जो दुनिया है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, इज सोर्स ऑफ ट्रबल्स। तो लेकिन हमें ये नहीं समझना है, हमें इस दुनिया में फिजिकल वर्ल्ड में रह के हमें स्पिरिचुअलिटी भी अख्तियार करनी है। हमें स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ इस फिजिकल वर्ल्ड को भी चलाना है। तो दिस इज द क्रिटिसिज्म। अगर होली एंड सोली
अगर सोली एंड सोली हम स्पिरिचुअल दुनिया में जाएंगे तो उसका ये क्रिटिसिज्म बनेगा, मीन्स कि देयर शुड बी अ बैलेंस between physical world and spiritual world. My dear students, thanks a lot. Enjoy this video. Thank you very much.